Hi guys, this is Pri. Welcome to our channel IELTS with Pri and Aman at IELTS Success Academy. If you are new to our channel, consider subscribing our channel and make sure to hit the like button and also share it with your friends. So in this video, we will be doing a cue card that is amongst the May to August 2024 speaking topics. So in this video, I will also be using Hindi translation along with my English explanation. If you do like this format of video, please do let me know by commenting below. So let's look at the topic. Describe a time you taught something new to a younger person. You should say when it happened, what you taught, who you taught, why you taught this person, and how you felt about teaching. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टाइम के बारे में बताना है आपको जब आपने अपने से किसी छोटे आदमी को कुछ सिखाया। ठीक है, आपको बताना है कब ये हुआ, क्या आपने सिखाया, किसको आपने सिखाया, क्यों आपने सिखाया और आपको उसे सिखा के दैट मीन्स टीच करके कैसा लगा। ठीक है, all right, so let's look at a sample answer that I have created for you all. Teaching gives individuals an opportunity to share one's knowledge and wisdom with learners and should be fun as well as interactive in order to make an interesting session. And today, I would like to tell you about a time when I got an opportunity to teach my little niece who is 11 years old. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सीधा क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन में हम बोल रहे हैं कि टीचिंग जो है वो लोगों को एक मौका देता है अपना ज्ञान और समझ, नॉलेज मीन्स ज्ञान, विजडम मीन्स समझ, दूसरों के साथ शेयर करने का, और फन होना चाहिए और इंटरेक्टिव होना चाहिए। मतलब इजीली जो बंदा दूसरा समझ रहा है उसको समझ आ जाना चाहिए और फन होना चाहिए, मतलब जो पढ़ रहा है उसे मजा आना चाहिए। और आज मैं एक टाइम के बारे में बताऊंगी जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स मौका मिला टू टीच माई लिटिल नीस। तो नीस हो गया सिस्टर या फिर ब्रदर की डॉटर, जो आपके सिस्टर है या ब्रदर है उसके डॉटर को आप नीस कह सकते हो। ठीक है, सन को नेफ्यू बोलते हैं। Alright, so let's continue. I vividly remember that last year, around mid September, my sister fell ill and had to attend her doctor's appointment, and hence she could not devote time to her daughter's studies, who had her mathematics exam the next day. So, devote time means to dedicate time or to spend time. Ill means sick. तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर मेरी बहन का तबीयत खराब हो गया था, दैट मीन्स फेल इल। ठीक है, और उसे अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में जाना था, इसी के कारण वो अपनी डॉटर की स्टडीज में टाइम डिवोट नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको पढ़ाने में समय नहीं दे पा रही थी। और उसकी डॉटर का एग्जाम जो था वो नेक्स्ट डे था, वो भी मैथ्स का एग्जाम। Furthermore, she asked me to look after my niece as well as assist her in her preparation as she did not want her exam results to be affected due to her health conditions. Assist means help, affected means impacted. तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि मेरी बहन ने फिर मुझे कहा कि तुम प्लीज मेरी डॉटर का देखभाल कर लो और उसे पढ़ा भी दो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसके तबीयत के वजह से उसकी डॉटर का एग्जाम रिजल्ट्स खराब हो या फिर उसकी एग्जाम उसकी वजह से सफर करे। ठीक है, एडिशनली I taught my niece some easy tips and tricks to solve the sums and equations logically, made her solve some practice tests, as well as assisted her in recapitulating some important formulas. Recapitulating means to revise. तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि मैंने अपनी नीस को बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए। ठीक है, जैसे कि वो जो भी सम्स वगैरह है मैथ्स में या इक्वेशंस है उसको लॉजिक के साथ इजीली सॉल्व कर पाए, उसको मैंने साथ ही प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए और जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सारे रिवाइज करवा दिए। रिकैपिचुलेट मतलब रिवाइज करवाना। Besides that, I also incorporated some simple and effortless activities so that she could grasp as well as understand information quickly in the 11th hour. So we have also used an idiom here which is in the 11th hour, which means in the last moment. तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं बिसाइड्स दैट, ये हो गया कनेक्टर, दैट मीन्स उसके अलावा, ये सारी चीजों के अलावा मैंने और भी चीजें इनकॉर्पोरेट मीन्स यूज किया,
सिंपल एंड एफर्टलेस, एफर्टलेस अगेन मीन्स इजी। तो एक्टिविटी के फॉर्म में भी मैंने उसको कुछ चीजें करवाई। क्यों? क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन मैं उसे बता रही हूँ बिल्कुल लास्ट मिनट पे अपने मेमोरी में रिटेन कर पाए, अपने दिमाग में रिटेन कर पाए। ग्रास्प मीन्स बिल्कुल अच्छे से समझ जाना। Finally, I felt like a dog with two tails and relieved as my niece obtained full marks in her test and was the topper in her class. I felt extremely proud of myself as I was able to keep up to the expectations of my sister and help her in a difficult situation. So we have used an idiom here which is felt like a dog with two tails, which means to be very happy. तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं लास्ट में कि मुझे बहुत खुशी हुई। हमने यहाँ idiom यूज किया डॉग विथ टू टेल्स, जिसका मतलब है बहुत खुश होना। एंड रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब जो भी टेंशन हो रही थी मुझे खुद को कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाए, उस सेंस में मैं बहुत रिलीव्ड हो गई। क्यों? क्योंकि उसे फुल मार्क्स मिला और वो अपने क्लास में टॉपर, दैट मीन्स सबसे ज्यादा मार्क्स उसे ही मिला। फिर लास्ट की लाइन में हम बोल रहे हैं कि मुझे अपने आप के ऊपर भी बहुत लगा कि हाँ भाई मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को हेल्प किया उसके बिल्कुल डिफिकल्ट यानी कि कठिन टाइम में। एंड ऑल्सो उसकी एक्सपेक्टेशन लाइक उसने मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था जिम्मेदारी दे के, राइट? तो उसका भरोसा भी मैंने नहीं तोड़ा, मीन्स उसके भरोसे पे मैं खड़ी उतरी। ठीक है। Thank you for your time, everyone. If you did like this video, please make sure to hit the like button and also consider subscribing to our channel. Till then, take care and see you soon. Bye bye.